हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। In previous class we have already discussed and already started the chapter number 6 of hydraulic coefficient, and we have discussed till hydraulic coefficient values. Now in this class I am going to explain you determination of the hydraulic coefficient in the laboratory, how you can calculate, how you can uh, determine the value of hydraulic coefficient in the laboratory. As we know that there are the three types of hydraulic coefficient: coefficient of contractions, which is cc, coefficient of velocity, that is cv, and coefficient of discharge, that is cd. The I have already discussed about vena contracta in my previous classes. If you have not watched that video, please go in the playlist and watch that video. And very important formula you have to remember, that what is the formula for calculating coefficient of contraction. Coefficient of contraction cc is equal to a actual upon a theoreticals, and you have to remember the value of the cc, that is cc is 0.64. Average value of the coefficient of contraction is 0.64. Coefficient of contraction, coefficient of velocity, and coefficient of discharge, these three coefficients that are the hydraulic coefficient, and these three all hydraulic coefficients are very important for the calculation of the actual velocity, for the calculation of the theoretical velocity, and for the calculation of the discharge, and for the calculation of the theoretical discharge. तो इन सभी वैल्यूज़ जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन कर लिया है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा के जेट के पास की जो एक्चुअल वेलोसिटी है और थियोरेटिकल वेलोसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. As we have to remember the formula for the calculation of the theoretical velocity, v theoreticals is equal to under root of 2gh, where g is value of the gravitational constant whose value is 9.81. Now the value of coefficient of velocity is vary in range of 0.95 to 0.99. Now the coefficient of discharge CD is a ratio of the actual discharge upon theoretical discharge. Actual discharge upon theoretical discharge. And the value of coefficient of discharge CD is 0.62. Now very important question is the relation between the coefficient of velocity, coefficient of discharge, and coefficient of contraction. हम सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल्स होता है, और क्यू एक्चुअल की जगह पे हम लोग एरिया एक्चुअल मल्टीप्लाई वेलोसिटी एक्चुअल कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्यू जो है वो एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी जितना होता है। तो क्यू थ्योरेटिकल की जगह पे भी हम लोग एरिया थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई वेलोसिटी थ्योरेटिकल कर सकते हैं। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो वी एक्चुअल अपॉन वी थ्योरेटिकल जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, और ए एक्चुअल अपॉन ए थ्योरेटिकल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आज की टॉपिक्स को हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो एक रिवीजन था प्रीवियस क्लासेस का, और आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोलिक कोफिशिएंट इन द लेबोरेटरी। सबसे पहले डिटर्मिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस मेथड के अंदर द टैंक कंटेनिंग द वाटर लेवल एट द कांस्टेंट लेवल, इस टैंक के अंदर पानी का जो लेवल है वो एक कांस्टेंट लेवल तक भरा हुआ है। मेंशन बाय द कांस्टेंट सप्लाई इज यूज, एन ओरिफिस इज प्रोवाइडेड इन द वॉल ऑफ द टैंक। टैंक के वॉल पे यहाँ पे ओरिफिस प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
ठीक है। और एट द सेक्शन ऑफ द सी सी वेयर द जेट इज minimum, so that jet is known as that point is known as a vena contracta representation. Let the water flow out of the tank through the orifice. अब हम लोग पानी को टैंक के अंदर से बाहर फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं, फ्लो करवा देते हैं. कंसीडर ए पार्टिकल्स ऑफ द वाटर इन द जेट एट पी. जेट पर जो पानी है, जो पार्टिकल फ्लो कर रहा है, उसको पी माना गया है. लेट द सेक्शन सी सी रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टा, और सी सी पॉइंट जो है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा का पॉइंट है. आगे बात करते हैं. एच इज़ अ कांस्टेंट हेड सप्लाई. एक्स इज़ अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द जेट एंड द वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट. वाई इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द जेट एंड द वेना कॉन्ट्रैक्टा. V is the velocity of the jet, and t is the time taken by the particle to reach CC vena contracta to P in the second. As we know that the equation y is equal to half gt square and x is equal to v into t, and from there we have to calculate the value of the t. जैसे आप x upon v करेंगे और t की वैल्यू जो है y वाले इक्वेशन में आपको पुट करना है. y इज इक्वल टू 1/2 g इंटू एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर. तो v स्क्वायर जो हो जाएगा वो g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y हो जाएगा, और v एक्चुअल जो है वो अंडर रूट वी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दूसरे तरफ हो जाएगा रूट अंडर रूट ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y. एज वी नो दैट द थियोरेटिकल वेलोसिटी v theoretical is equal to अंडर रूट ऑफ 2gh. सो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v एक्चुअल अपॉन v theoretical. v एक्चुअल को हमने जो अभी कैलकुलेट किया उसको ऊपर रखेंगे, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर अब जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, और वी थियोरेटिकल को नीचे रखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ 2gh. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4yh, और यही आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. जब आप थियोरेटिकली किसी लेबोरेटरी के अंदर कैलकुलेट करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको मिलेगा CV इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4yh. Now next is coefficient of discharge. The jet of the water passing through the orifice is collected in the measuring tank. जो पानी जो है ओरिफिस के अंदर से पास कर रहा था उसको हम लोग किसी मेजरिंग टैंक के अंदर इकट्ठा करेंगे. उस वॉल्यूम ऑफ वाटर को मान लीजिए V डैश इज कलेक्टेड इन द मेजरिंग टैंक एट द टाइम T. तो Q एक्चुअल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड डिवाइडेड बाय द टाइम, और Q थियोरेटिकल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ओरिफिस मल्टीप्लाई थियोरेटिकल वेलोसिटी. तो A मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 2gh. CD को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लेते हैं, तो CD जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे Q एक्चुअल अपॉन Q थियोरेटिकल. इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो इन दिस मेथड द एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज मेजर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोमीटर कॉन्ट्रैक्शन गेज. तो इसके अंदर हम लोग एक इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोमीटर कॉन्ट्रैक्शन गेज. इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक रिंग प्रोवाइडेड की जाती है विद द 4 रेडियल स्क्रू गेज. इसके अंदर 4 जो है जैसे 1 2 3 और 4 रेडियल स्क्रू गेज हैं. इस इक्वल स्पेस पे उनको प्रोवाइड किया गया है. द रिंग इज हेल्ड एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन सो दैट द जेट कैन पास थ्रू द इट्स सेंटर. विथ रिंग जो है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा के सेक्शन पे लगाया गया है, जेट के पास में लगाया गया है. ये आपका जेट है और इसके चारों तरफ जो है वो रिंग प्रोवाइड की गई है. द स्क्रू गेज आर नाउ एडजस्टेड सो दैट दियर शार्प पॉइंट जस्ट टच द सरफेस ऑफ द जेट. अब स्क्रू गेज को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है उसका जो शार्प पॉइंट है वो जेट के ऊपर टच कर जाए. Now the instrument is removed and the spacing between the opposite screw point are measured accurately. It will give the diameter of the jet at vena contracta. अब उसके बाद स्क्रू को निकाल के उस सब का जो है स्पेसिंग जो है वो हमें मेजर कर लेना है. जैसे आप मेजर करोगे तो आपको
वेना कॉन्ट्रैक्टा का इट विल गिव द डायमीटर ऑफ जेट, जेट का डायमीटर मिलेगा कहाँ पर, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे। नोइंग द डायमीटर ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, एक्चुअल एरिया ऑफ द जेट कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे ही आपका जेट का डायमीटर मिल जाता है वैसे ही आप एक्चुअल एरिया निकाल पाओगे। फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस थियोरेटिकल एरिया इज कैलकुलेटेड, और ओरिफिस के डायमीटर से थियोरेटिकल एरिया कैलकुलेट होगा, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा वो ए एक्चुअल अपॉन ए थियोरेटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को थियोरेटिकल माध्यम से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट भी डिस्कशन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का एक लाइक, नीचे लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, और अपना कुछ वैल्यूएबल सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।